So in doubts, you are kindly write in the section. Follow industry news. Stay informed and stand on it. Okay. Any doubts till now? Okay. Next question. Now what is this? This is important question. Identify the prosthesis. Now a very important question. You will see two type of questions in this. So you can see a denture type prosthesis and an extension that is going on to the soft palate. Yes. So you will see two type of pictures if you see this. So but you cannot see any type of soft tissue defect. There is no soft tissue defect in this picture, so that means it cannot be taken as an obturator. So if you see this extension, it is not obturating because there is no defect. So that means it might be a palatal structure is there. There is palatal structure, palatal continuity, everything is there. So it might be lifting the palate. Why? Because there might be some, like bulbar palsy. Okay, now there are two terms to understand. One is your palatal insufficiency and second is your palatal incompetency. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में. इनसफिशिएंट का मतलब है सर्जरी हुई है भाई और सॉफ्ट पैलेट में डिफेक्ट बन गया बहुत बड़ा. देन यू गिव अ पैलेटल सॉफ्ट वीलोफेरेंजियल ऑब्चुरेटर. वीलम मीन्स सॉफ्ट पैलेट, फेरेंजियल मीन्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स मेनली. तो वीलोफेरेंजियल ऑब्चुरेटर आप देते हो जब वहाँ पे सर्जरी हुई हो और आपका स्ट्रक्चर इज मिसिंग. इनकॉम्पिटेंट का मतलब है स्ट्रक्चर पूरा है लेकिन देखो होता क्या है, वेन एवर वी swallow, whenever we are talking, so if this is the if this is the soft palate, so whenever you swallow the soft, there is something known as velopharyngeal closure. So what is velopharyngeal closure? The soft tissue moves up and posteriorly to press against the posterior pharyngeal wall. Now when this happens, the air pipe is shut off. So whenever you are swallowing, the air pipe is shut off and the food goes into the food pipe, because they are lying adjacent to each other, the food pipe and the air pipe. So when you are swallowing, what happens is that there is a velopharyngeal closure. It is an important phenomena. Now in patients in which either the soft palate is gone, resected, there is a defect, so you will give so it will be called as a case of soft palatal या velopharyngeal insufficiency. So if you see in the current picture, is it velopharyngeal insufficiency or is it velopharyngeal incompetency? So it clearly is depicted that it is not insufficiency but it is velopharyngeal incompetency. It is not raising up to form the velopharyngeal closure, so you give a palatal lift prosthesis. It's a soft tissue. It is a palatal lift prosthesis. Okay, palatal lift prosthesis. तो अगर ये palatal lift, speech appliance, cleft obturator, feeding plate, तो आंसर here is
palatal lift prosthesis. I hope it is clear. So it might happen in case of bulbar palsy, cerebral palsy. It might happen in such cases where the 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 soft palate continuity is maintained, there is no surgery, there is no defect, but because of the loss of the neuromuscular control, because of the loss of the nerves that supply the soft palate, it might happen that they are not moving as you do want to, and it will not bring about velopharyngeal closure. तो अगर ऐसा करना है तो either there might be either there might be the continuation is present, there is no surgery, तो वहाँ पे हमें पैलेट को लिफ्ट करा के बंद कराना होता है, तो उसको बोलते हैं पैलेटल लिफ्ट प्रोस्थेसिस. एंड इफ देयर इज insufficiency, there is a surgery, the palatal soft palate form is gone, तो वहाँ पे आप velopharyngeal obturator देते हो. I hope it is clear. Next, maximum tooth contact occurs during. Is it during lateral excursion? It is during protrusion? Is it during retrusion? Or is it during centric occlusion? तो definitely देखो दो चीज़ें होती हैं, याद रखो. तीन चार चीज़ों फर्क बताया था. एक होता है सेंट्रिक रिलेशन, एक होता है सेंट्रिक ऑक्लूजन, एक होता है इंटरकस्पल पोजीशन ICP या मैक्सिमम MICP, मैक्सिमम इंटरकस्पल पोजीशन. अब सेंट्रिक रिलेशन पोजीशन इज नॉट रिलेटेड टू टूथ, इट इज़ अ बोन टू बोन कॉन्टैक्ट. तो जहाँ पे हमारा इफ़ यू सी दैट, अगर ये हमारा कॉन्डाइल है, ये हमारी डिस्क है, ये मिडिल पोर्शन है जहाँ पे बार बार आके कॉन्डाइल लगता है, और ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द डिस्क है. तो सेंट्रिक रिलेशन इज अ बोन टू बोन रिलेशन, बोन टू बोन रिलेशन, जहाँ पे हमारा कॉन्डाइल is articulating with the middle avascular portion of the disc, okay, with the complex in anterior superior direction against the slopes of the articular eminence. तो इट्स अ बोन टू बोन रिलेशन. प्रोट्रूजन में अगेन एंटीरियर टीथ का कॉन्टैक्ट आते पीछे के नहीं आते, रिट्रूजन में पीछे चले गए. सेंट्रिक ऑक्लूजन में तो दिस इज सेंट्रिक रिलेशन. सेंट्रिक रिलेशन में जो दांत हमारे आपस में कांटेक्ट में आते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रिक ऑक्लूजन, ठीक है, ओके. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट कम्स ड्यूरिंग सेंट्रिक रिलेशन इज योर सेंट्रिक ऑक्लूजन. लेकिन होता क्या है, बहुत सारा फिनोमेना में, बहुत सारे पेशेंट में ये जो सेंट्रिक ऑक्लूजन से आगे ले जाके पेशेंट पूरा मिक्स इंटरकस्पेशन में बंद करता है, मैक्सिमम इंटरकस्पल पोजीशन में बंद करता है. तो देर इज़ अ हिट एंड स्लाइड मैकेनिज्म. एंटीरियरली हमारा मैंडिबल हल्का सा आगे मूव करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटरकस्पल पोजीशन. इट आइडियली योर सेंट्रिक ऑक्लूजन शुड कोइंसाइड विद योर मैक्सिमम इंटरकस्पल पोजीशन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डजंट हैपन, ओके. सो मैक्सिमम दांत का कॉन्टैक्ट हमारा व्हेन विल दैट हैपन, इट विल हैपन ड्यूरिंग सेंट्रिक ऑक्लूजन पोजीशन. Okay, in Posselt's envelope of motion, the superior border marking is because of, is it because of the condylar inclination? Is it because of the tooth contact? Is it because of ligaments? It is because of joint anatomy. So if you see this is Posselt's envelope of motion. ओके, सो दीज एंगल ऑफ मोशन मीन्स जो हमारी बॉर्डर पोजीशंस हैं, ये जितनी सारी पोजीशन दिख रही है बॉर्डर, मतलब इससे ऊपर नहीं हो सकती. जैसे ये है हमारी रिट्रूडेड कॉन्टैक्ट पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आता है कई बार, यहाँ नहीं होगा, फिर इससे हल्का सा आगे गया इंटरकस्पल पोजीशन, आगे गया मैक्सिमम प्रोट्रूजन, ठीक है, उसके बाद पेशेंट ने मुंह खोल लिया, मैक्सिमम माउथ ओपनिंग, हल्का सा बंद करके, और ये बाद में बंद कर देगा. So this is Posselt's envelope of mandibular motion. Okay, got it. So maximum tooth contact occurs during your centric occlusion. What type of
So what type of bridge? This question came in NEET previously. So what type of bridge is this? This type of bridge is your definitely. देखो normally bridge you see, if you see the bridge, oh I'm sorry, मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया है दिल. So if you see the prosthesis, normally the bridge is supported on both the sides. ये pontic है, ये connector है और ये हमारा region है. So it is supported on both the sides anteriorly and posteriorly by abutments. But can it happen that ये हमने ये दे रहे हैं, ये हमने एक दी और यहाँ नीचे नहीं, तो it is supported only from one side. तो उसको बोलते हैं हम कैंटिलीवर प्रोस्थेसिस या कैंटिलीवर एफपीडी. Ideally it is only given in case, you know, avoid cantilevers, because it's a, ये भी क्वेश्चन आता है, cantilever is a class 1 lever. Class 1 lever in prosthodontics is basically your force magnifier. ओके फलक्रम लगेगा, इट इज जस्ट लाइक यहाँ एफर्ट आया, यहाँ फलक्रम लगा और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आएगा तो उठ जाएगा, है ना. सो व्हाट हैपन्स इज दैट योर कैंटिलीवर प्रोस्थेसिस, इट इज़ अ फोर्स मैग्नीफायर. ट्राई टू अवॉइड, बट ideally you can do a cantilever prosthesis in case of maxillary canines, taking support of maxillary canines and replacing a very small tooth lateral incisor. ठीक है, तो this is the ideal scenario where otherwise it's not indicated. So answer क्या है? It is the cantilever bridge. The answer is D. The answer is D. Clear है? Okay, very important. A patient reports with a missing tooth number 26 and 27. Okay, he desires to have a RPD for the missing teeth. Okay, while doing mouth preparation for the, okay, the dentist establishes the proximal guide planes and the rest seats. So the rest seats should be prepared. तो ये हमेशा वो आती है कि भाई कि मान लो ये लास्ट 2-5 दांत है फॉर एग्जांपल, तो पहले आप रेस्ट सीट बनाओगे या उसके बाद गाइड प्लेन बनाओगे, या पहले गाइड प्लेन बनाओगे और उसके बाद रेस्ट सीट बनाओगे. तो डेफिनेटली द गाइड प्लेन शुड ऑलवेज बी मेड फर्स्ट एंड रेस्ट सीट्स. वाई? गाइड प्लेन हमेशा सबसे पहले बनाए जाते हैं, तो पहले हमेशा गाइड प्लेन बनाएंगे, उसके बाद आप अपनी रेस्ट सीट की डायमेंशंस वगैरह आप बना सकते हो, राइट. अगर हम उल्टा करें तो क्या होगा? मान लो आपने पहले रेस्ट सीट बना दी और रेस्ट सीट का ये जो हमारा बेस हेड इज टुवर्ड द प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट. ओके, सो दिस इज द विड्थ दैट यू हैव डिसाइडेड. उसके बाद अगर गाइड प्लेन बनाओगे तो डोंट यू फील दैट द डायमेंशंस ऑफ द रेस्ट सीट्स आर बीइंग ऑल्टर्ड? Yes, they are being altered. So in such cases, always whenever you are doing mouth preparation, the guide plane should be prepared first and followed by rest seats, right? Clear है? So the answer is prior to proximal guide plane. So rest seat should be made once the guide plane should be made. तो आफ्टर द प्रॉक्सिमल गाइड प्लेन, पहले प्रॉक्सिमल गाइड प्लेन बनेगा. तो आंसर इज सी. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम मेजर कनेक्टर फ्रॉम पैलेटल जिंजाइवल मार्जिन. सो हेयर द आंसर इज 6 mm. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई कि ये अगर दांत हैं और ये आपका अगर गम की मार्जिन है, तो बेसिकली आपका जो मेजर कनेक्टर है मैक्सिला में 6 mm एंटीरियर मार्जिन आपकी 6 mm दूर रहनी चाहिए मिनिमम, और मैंडिबल में मिनिमम 4 से 5 mm फ्रॉम द लिंगो जिंजाइवल मार्जिन इन मैंडिबल. तो मैंडिबल में नॉर्मली 3 से 4 mm और मैक्सिला में द एंटीरियर मार्जिन शुड बी अराउंड 6 mm. क्लियर है? ठीक है. ओके, ऑप्टिमम इंटरआर डिस्टेंस फॉर इम्प्लांट सपोर्टेड रिमूवेबल प्रोस्थेसिस. सो इट क्लियर स्टेट दैट
ऑप्टिमम इंटरआर डिस्टेंस मतलब आपके इंटरआर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब या फिर मैं बोलूँ कि आपका जो इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर है वो आपका मिनिमम कितने इंटरआर डिस्टेंस में होना चाहिए। तो रिमेंबर दिस दैट वेन एवर द इंटरआर डिस्टेंस बिटवीन द टू इज़ अराउंड 9 to 10 mm, अगर 9 से 10 mm है तो उस केसेस में आप यू कैन गिव a PFM or an all metal fixed prosthesis। अगर आपका 10 है मिनिमम, 10 से 12 है तो यू कैन गो विद जर्कोनिया फिक्स प्रोस्थेसिस। ठीक है, इफ़ यू हैव मोर देन 15 to 18 तो यू कैन गिव अ हाइब्रिड प्रोस्थेसिस। ओके, एंड इफ यू हैव इन एक्सेस ऑफ 20 mm, 20 या 20 से ज़्यादा है, you go with an overdenture option. Then don't give a fixed option when the interoral distance is more. Why? Because your CGS, that is the crown height space, CHS, if it is more, it will act as a vertical cantilever and it will induce a lot of failures in implantology. So it will be a mechanical failure. So here अगर आपका implant supported removal processes है तो it has to be your 20-25 mm. आइडेंटिफाई, सॉरी बेटा इसमें आंसर आपका डी ही है। बेसिकली ओवरडेंचर पूछेगा, इम्प्लांट सपोर्टेड ओवरडेंचर, तो आंसर इज इन एक्सेस ऑफ 20 mm, तो आंसर इसको ये रखना। ठीक है, आइडेंटिफाई, दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2020 बेटा। इट इज़ बेसिकली अ टॉक रैचेट ठीक है। सो बेसिकली जितने भी आप जब भी इम्प्लांट डालते हैं ओके, सो okay, so these are torque ratchet where you will use them to place तो अगर आपको दिख रहा है दिस इज अ टॉक रैचेट। नाउ टॉक रैचेट बेसिकली यहाँ पे हमारा एंगेज होगा कोई, फॉर एग्जांपल एन इम्प्लांट ड्राइवर वेयर यू कैन प्लेस द इम्प्लांट, यू कैन सी देर आर मार्किंग्स ऑन इट। ओके, सो जब ये बार यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये बताएगा कि 30 न्यूटन सेंटीमीटर है, 25 न्यूटन सेंटीमीटर है। तो बेसिकली दिस इज अ टॉक रैचेट या टॉक रेंच। used in oral implantology। ठीक है, यूज इन ओरल इम्प्लांटोलॉजी। ठीक, अब यहाँ पे टॉर्क की बात आती है तो बेटा देखो आइडियल टॉर्क
Yep, ideal primary stability of the implant, it should be in the region of 35 to 40 या 45 न्यूटन सेंटीमीटर. मिनिमम टॉर्क 15 से 20 न्यूटन सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और मैक्सिमम टॉर्क इट शुड नॉट क्रॉस 60. आइडियली इट शुड नॉट क्रॉस 60 न्यूटन सेंटीमीटर. ठीक है, फॉर अ नॉर्मल इम्प्लांटोलॉजी केसेस. ओके, इट शुड नॉट क्रॉस 60. राइट, तो इमीडिएट लोडिंग के लिए प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए हमें. ठीक है ना, गॉट इट. तो दिस इज अ टॉर्क रेचेट A. Then RFA is used in implantology for, so RFA is a resonance frequency analyzer. देखो बेटा, दो तरीके की स्टेबिलिटी होती है हमारे इम्प्लांट्स में. एक होती है प्राइमरी स्टेबिलिटी, एक होती है सेकेंडरी. प्राइमरी स्टेबिलिटी इज अ मैकेनिकल इट इज़ मोर ऑफ मैकेनिकल थिंग. सेकेंडरी इज मोर ऑफ अ बायोलॉजिकल फिक्सेशन. On the day of surgery, we fix mechanically the implant fixture to the bone, but after the osseointegration, it is the biological fixing of the implant. ठीक है, ठीक है बेटा. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जिस दिन इम्प्लांट डालो उस दिन प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और 3 से 4 महीने बाद जब ऑस्टियोइंटीग्रेट हो जाए तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन. अब प्राइमरी स्टेबिलिटी देखने के लिए तो चलो आपने टॉक रैचेट यूज़ कर लिया है ना. और बेटा टॉक रैचेट भी ना हमारे दो तरीके के होते हैं. ठीक है, सो वन मे बी योर स्प्रिंग टाइप, जो आपने वो स्प्रिंग दिखती होंगी बीच में, टॉक रैचेट के बीच में स्प्रिंग होगी. एंड वन इज़ योर बार टाइप या टॉगल टाइप. टॉगल टाइप TOGGLE, ये टॉगल टाइप है. तो टॉगल मूव कर जाता है आगे की तरफ अगर आपकी वो टॉक रेंज आपकी उतनी स्टेबिलिटी आ गई है. ओके, लीव इट. सो RFA, तो बेसिकली तो सेकेंडरी स्टेबिलिटी या ऑस्टियोइंटीग्रेशन को चेक करने के लिए we give resonance frequency analyzer. now इसमें अगर आपका आए ISQ वैल्यूज या ISQ मीटर, वो भी सेम है. ऑस्टल अपैरेटस बिल्कुल सही है. तो ये क्या बताते हैं, सेकेंडरी स्टेबिलिटी या बायोलॉजिकल फिक्सेशन या अमाउंट ऑफ ऑस्टियोइंटीग्रेशन. तो इसमें जब हम whenever we are talking about the amount of osseointegration, we have to quantify the osseointegration in implantology. So in such case we have to see more the ISQ. तो हमारा एक ISQ होता क्या है, जैसे हमारा ये इम्प्लांट है, इम्प्लांट के अंदर हम एक पैग डालते हैं, स्मार्ट पैग. ठीक है, उसके बाद हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक प्रोब होता है जिसके पास लेके जाते हैं, जहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, और ये देयर विल बी सम मूवमेंट इन द पैग. सो दैट मूवमेंट इज बीइंग टेकन अप बाय दी, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही कम ISQ वैल्यू होगी. इसका मतलब हमारा इम्प्लांट अभी इतना स्टेबल नहीं है. तो बेसिकली क्या ISQ मीटर में वैल्यूज़ आ जाती हैं. तो रिमेंबर देखो, मोर दी ISQ वैल्यूज़, more the ISQ values, better is the secondary stability. So it should be in the excess of 50, 60, 70, 80. बहुत अच्छी है. तो more the value of ISQ value, better would be the integration, and then we can go ahead and load the implant. Okay. Okay. Dentist places an implant in the upper anterior region of the jaw. He preserves a part of the root stump on the labial aspect of the implant. What is the technique called? So the technique that was given by Herzler to maintain this labial portion of the root, okay, इसको हम बोलते हैं socket shield technique.
देखो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वोंट प्रमोट दिस सॉकेट शील्ड टेक्निक, वाई? बिकॉज डेफिनेटली उनके ग्राफ नहीं बिकेंगे। होता क्या है कि देखो, जब आपने कभी देखा होगा, मान लो ये आपकी लेबल कॉर्टिकल प्लेट है और ये आपकी रूट थी, तो रूट का पीडीएल होता है, तो पीडीएल के जो हमारे लेबियल एस्पेक्ट के पीडीएल हैं, दैट आल्सो सप्लाइज अ मेजर सप्लाई मोर देन 50% ऑफ द सप्लाई टू द लेबल कॉर्टिकल प्लेट। ओके, तो जैसे ही आपने ये निकाली रूट, सो दिस ब्लड सप्लाई of the labial cortical plate is compromised, and if it is less than 1.8 mm, अगर या हम 1.5 to 1.8 mm से अगर कम है थिकनेस, तो वो रिजॉल्व हो जाती है, ये स्टडीज़ कहती हैं। अब एक स्टडी फिर हर्जलर ने सॉकेट शील्ड टेक्निक बताई। उसने कहा कि भाई साहब, ये अगर रूट है, ये बक्कल है, ये लिंगुअल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पैरेटल या लिंगुअल सेगमेंट को हटाओ और सिर्फ इसके अंदर ये सॉकेट शील्ड बची रहेगी, और फिर हम इसके पैरेटल जाके इम्प्लांट डाल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद जब ऑस्टिनेटेड होगा तो यहाँ सब बोन बन चुकी होगी एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन। सो इसको क्या बोलते हैं? सॉकेट शील्ड टेक्निक। सॉकेट शील्ड टेक्निक वी इट इज सो दिस बक्कल सेगमेंट, पैरेटल या लिंगुअल सेगमेंट को हम हटा देते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस सेगमेंट प्रिजर्व्स द लेबल कॉर्टिकल प्लेट एंड ऑल्सो मेंटेन सी हार्ड टिश्यू। अगर मेंटेन्ड है तो बल्क मेंटेन्ड है सॉफ्ट टिश्यू का, रिमेंबर दिस। अगर हार्ड टिश्यू फॉल्स, द बल्क इज ऑल्सो गॉन, सो इट वोंट बी एस्थेटिक। सो आंसर हियर इज ए, सॉकेट शील्ड टेक्निक। Anti's law is used in the selection of definitely FPD abutments. So answer is D. तो बता दिया मैंने आपको। What is this? बेटा देखो तो दिस इज अ टिश्यू पंच, सॉफ्ट टिश्यू पंच। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा वो है 3.5 इज अ डायमीटर। सो इफ़ वी वांट टू डू अ फ्लैपलेस टेक्निक, तो हम क्या करते हैं, हम इसको अपने हैंड पीस में लगाते हैं, है ना, और जो भी हमारे 300 से 500 आरपीएम पे चलता है, और ये हमारा आया, तो हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं यहाँ पे एंड वी प्रेस इट ऑन दी सॉफ्ट टिश्यूज़। तो ये सॉफ्ट टिश्यू वाला पोर्शन हट जाता है एंड देन वी कैन प्लेस योर इम्प्लांट एज अ फ्लैपलेस प्रोसीजर। तो ये क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टिश्यू पंच। तो ये है क्या, ये है टिश्यू पंच, टिश्यू पंच। ओके, okay, identify the location of which component of RPD the arrow is pointing to. Simple। तो अगर ये देख रहे हो आप, तो इसका मतलब ये यहाँ या यहाँ बता रहा है, ये है, तो दिस इज अ फल्क्रम लाइन। फल्क्रम लाइन के सेंटर से जहाँ पड़ेगा वहाँ बता रहा है, ये यहाँ यहाँ बता रहा है। दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट रिटेनर, showing the direction of indirect retainer, so it will prevent the tissue away movement in distal extension cases. Easy question। Okay, the arrow is pointing to the indirect retainer, right? Class 4 में remember this important question, it is reverse of class 1, and the embryo clasp if is given, so here the embryo clasp is acting as your indirect retainer, ठीक है। What is this? This is a paralleling guide pin। देखो, आपको अगर मल्टीपल इम्प्लांट डालने हैं और आपको उनकी लॉन्ग एक्सिस सीधी रखनी है, तो व्हाट यू डू, यू ऑस्टियोटमी बनाई आपने 2 mm 2.5 mm तक, एंड देन यू प्लेस दिस पिन्स। इन पिन पे मार्किंग भी होती है, एंड देन यू कैन सी दैट ये दोनों, अब मान लो ये ऐसे ऐसे आ रही है, इसकी लॉन्ग एक्सिस ऐसे है, ये एक्सिस है, तो इसका मतलब टेढ़ा है, तो यू हैव टू करेक्ट दी ऑस्टियोटमी टिल इट बिकम्स एब्सोल्युटली स्ट्रेट, okay, to the paralleling guide pin of the mesial side. So paralleling guide pin is the answer। Okay, best major connector of choice in this particular situation, so if you see that it's a okay,
Okay, so if this is, so you can see it's a distal extension case, class 1, div 1. So better we give a very rigid major connector in such a case. So here the rigid major connector is a closed horseshoe shape maxillary major connector or anterior posterior palatal strap. So answer here is C, because we want rigidity. It's a distal extension case and we need a structurally rigid or a strong maxillary major connector. तो आंसर here is closed horseshoe shape maxillary major connector, right? ये क्या है बेटा, आपको ये ऐसा रेजर जैसा दिखेगा, तो ये हमारा बोन स्क्रेपर है. आजकल बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है. अगर आपको कोई ड्रिल दिखे शार्प सी, तो दिस इज़ अ बोन स्क्रेपर. होता क्या है, जस्ट लाइक योर रेजर. ये ट्रिम हम बोन के ऊपर ऐसे चलाते हैं, खुरचते हैं, एंड बोन इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, एंड वी कैन यूज इट फॉर योर ग्राफ्टिंग, राइट. सो टू कलेक्ट ऑस्टियोजेनिक बोन और ऑटोजेनस बोन शेविंग्स फ्रॉम दी फॉर एग्जाम्पल लेबियल टू रेज और एक्स, हम चलाते हैं ऐसे. इसके अंदर एक ब्लेड लगा होता है सरफेस पे, यहाँ पे देयर इज़ अ ब्लेड हेयर, हल्का सा यहाँ ऐसे ब्लेड लगा होता है ऐसे. तो ये हम खुरचते हैं, जैसे कद्दूकस करते हैं ना, तो अंदर इकट्ठा हो जाओ. इट्स अ बोन स्क्रेपर टू कलेक्ट द बोन. ओके, देन व्हाट इज द टेक्निक दैट इज बीइंग depicted over here? Is it a open tray technique? Is it a closed tray technique? तो बेटा याद रखो, अगर आपका ट्रे ओपन है, लॉन्ग इम्प्रेशन योर ओपन ट्रे, और इसको हम बोलते हैं पिकअप टाइप इम्प्रेशन कोपिंग. पिकअप टाइप इम्प्रेशन कोपिंग, ठीक है. ट्रे हमारी ओपन कर रखी है, स्क्रू हमारा लॉन्ग स्क्रू एक्सपोज है, लॉन्ग स्क्रू, तो इट्स अ ओपन ट्रे इम्प्रेशन टेक्निक और पिकअप टाइप इम्प्रेशन टेक्निक इम्प्लांट लेवल. दो तरीके की टेक्निक होती हैं इम्प्लांट में. एक होती है हमारी इम्प्लांट लेवल और एक होती है अबटमेंट लेवल. इम्प्लांट लेवल मतलब है कि हमारा फिक्सचर है एंड देन यू आर कनेक्टिंग डायरेक्टली और इम्प्रेशन कोपिंग टू इम्प्लांट, तो वो हो गया इम्प्लांट लेवल. अब चाहे इसमें ओपन ट्रे आ जाए, चाहे इसमें क्लोज ट्रे आ जाए. अबटमेंट लेवल का मतलब है आपका ये इम्प्लांट है, इम्प्लांट के ऊपर आपने एनाटॉमिक अबटमेंट लगा रखा है. ऑन दिस एनाटॉमिक अबटमेंट आपने एक ये स्नगली फिटिंग कैप लगा रखी है. तो जब आप इम्प्रेशन लेते हो तो ये कैप पिकअप हो जाती है, ओके, एंड देन यू कैन रिप्लेस द अबटमेंट एंड द एनालॉग इन दैट कैप. उसको बोलते हैं अबटमेंट लेवल. इवन मल्टी यूनिट अबटमेंट्स के ऊपर जब आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो इट बिकम्स एन अबटमेंट लेवल इम्प्रेशन. तो जो टेक्निक यहाँ दिख रही है, नॉर्मली ओपन ट्रे टेक्निक्स, नॉर्मली दे आर बीइंग यूज्ड इन फॉर मल्टीपल इम्प्लांट्स या डाइवर्जेंट प्लेस्ड इम्प्लांट्स और इन फुल माउथ रिहेबिलिटेशन नॉर्मली. ओके, ठीक है बेटा. एक चीज़ का ध्यान रखना, आजकल स्कैनर्स बहुत चल रहे हैं, इंट्राओरल स्कैनर्स, ठीक है. यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो आपको बहुत कम लोग देंगे. अगर रिसेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप डिजिटल इंट्राओरल स्कैनर्स से इम्प्रेशन लेंगे, तो याद रखो 1 से 4 यूनिट अगर इम्प्लांट्स हैं, इतना स्पैन है, एक ही आर्च में है, मान लो 4, 5, 6, 7, ओके, स्कैनर्स विल डू वंडर्स, नो प्रॉब्लम. पेशेंट को गैग नहीं है, कुछ नहीं है, स्कैन करो, स्कैन बॉडी लगा के स्कैन करा आपने कर दिया, हो गया, ठीक है. जैसे ही आपका क्रॉस आर्च जाते हो, मान लो ये है, यहाँ गए, तो यहाँ पे हमारे एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली इन फुल माउथ इम्प्लांट केसेस जहाँ पूरे आर्च में इम्प्लांट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लगे हुए हैं. जब क्रॉस आर्च फुल माउथ इम्प्लांट केसेस होते हैं तो वहाँ पे स्कैनर्स इट विल नॉट ओनली स्टिच द इमेजेस बट ऑल्सो स्टिच द एरर्स. तो उसमें अराउंड 60 से 120 माइक्रोन तक का एरर आ सकता है. तो अभी भी या तो देन इंट्राओरल स्कैनर से बेटर है, देयर इज समथिंग नोन एज फोटोग्रामेट्री, राइट डाउन. फोटोग्रामेट्री में बेसिकली हाई रेजोल्यूशन इमेज कैमराज होते हैं, हम उससे इमेज लेते हैं डिफरेंट उसमें एंगुलेशन से. तो अगर आपसे पूछे फुल माउथ केसेस में फोटोग्रामेट्री इज़ बेटर देन इंट्राओरल स्कैनर.
फोटोग्रामेट्री सिर्फ इम्प्लांट की पोजीशन स्कैन करती है, सॉफ्ट टिश्यू को स्कैन नहीं करती है। फिर भी अगर फोटोग्रामेट्री ऑप्शन नहीं है और आपसे कन्वेंशनल ओपन ट्रे इम्प्रेशन टेक्निक पूछी जाती है, येस देयर इंट्राओरल स्कैनर इन फुल माउथ केसेस विल इंड्यूस मोर एरर्स। तो बेटर, अगर फोटोग्रामेट्री दे रखा है तो बेस्ट इज फोटोग्रामेट्री राइट डाउन। लेकिन अगर फोटोग्रामेट्री नहीं है और इंट्राओरल स्कैनर और ओपन ट्रे इम्प्रेशन टेक्निक एनालॉग इम्प्रेशन में पूछ रखा हो, तो आंसर इज योर ओपन ट्रे इम्प्रेशन टेक्निक, योर एनालॉग इम्प्रेशन, रिमेंबर दिस। ठीक है, इंट्राओरल स्कैनर्स में प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई द स्क्रू दैट इज गिवन, ये वाला ये क्या है बेटा? इम्प्लांट लगाया, देखो रूल है, इम्प्लांट लगाया, इम्प्लांट के ऊपर कुछ तो लगाओगे, ये लगाते हो, देयर इज समथिंग नोन एज कवर स्क्रू और सीलिंग स्क्रू। We want that nothing should go, the bone should not form inside the implant, we want the bone should be forming around the implant, soft tissue जाना चाहिए, कुछ भी जाना चाहिए, तो हम उसे सील कर देते हैं ऊपर से बाय एडिंग अ कवर स्क्रू और दी सीलिंग स्क्रू। ठीक है, जब सेकेंड स्टेज होती है तो इसको हटाते हैं हम, एंड देन इफ दिस इज द इम्प्लांट, ओके, हम फिर लगाते हैं जिंजाइवल फॉर्मर। ठीक है, फिर हम सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल या इमरजेंस प्रोफाइल बनाने के लिए हम इम्प्लांट में क्या लगाते हैं? हीलिंग अबटमेंट या जिंजाइवल फॉर्मर। ठीक है, फॉर मेंटेन दी, और नॉर्मली 3 से 4 mm की हमारी बायोलॉजिकल विड्थ होती है इम्प्लांट्स में, यार रिमेंबर दिस। ठीक है, 3 से 4 mm आइडियली होनी चाहिए बायोलॉजिकल विड्थ। ठीक है, ये क्या है बेटा? यू कैन सी, आप देखो कोई भी ऐसी ड्रिल हो जिसके ऊपर ऐसे हॉलो हो और ऐसे हो, वो मेनली ट्रिफाइन ड्रिल्स होती हैं। नॉर्मली ट्रिफाइन ड्रिल्स आर यूज, जैसे मान लो कोई इम्प्लांट है, मान लो फ्रैक्चर हो गया आपका इम्प्लांट, और वो किसी काम का रहा नहीं, और भैया पेशेंट बोल रहा है कि अब क्या करोगे, इम्प्लांट ही फ्रैक्चर हो गया, तो हम ऐसे ट्रिफाइन ड्रिल से उसको काटते हैं। मतलब ये इम्प्लांट है, ये फ्रैक्चर इम्प्लांट है, हमें पता है हमने ट्रिफाइन चलाई साइड में, तो बोन कटेगी, इम्प्लांट ढीला हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो दीज ट्रिफाइन ड्रिल्स आर यूज टू रिमूव दी फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर्ड इम्प्लांट है, ऑस्टियोइंडिकेटेड इम्प्लांट है, तो वो आपको ट्रिफाइन से निकालना पड़ेगा। इट कम्स इन डिफरेंट विड्थ, डिफरेंट डायमीटर्स। ओके, तो जितना मान लो आपका इम्प्लांट का डायमीटर ज़्यादा है, उससे एक डायमीटर ज़्यादा ट्रिफाइन ड्रिल यूज़ करोगे उसको निकालने के लिए, राइट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस। इज इट अ रिकमेंड क्राउन, इट इज़ अ एंडो क्राउन, इज इट अ स्क्रू रिटेन इम्प्लांट क्राउन, या इट इज़ अ सीमेंट रिटेन इम्प्लांट क्राउन। बेटा आपको स्क्रू एक्सेस होल दिख रहा है, आपको स्क्रू दिख रहे हैं, तो इट इज़ अ स्क्रू रिटेन क्राउन और इवन अ स्क्रू सीमेंट रिटेन क्राउन। ठीक है, इफ यू कैन सी द एक्सेस होल, so definitely it is a screw retained implant crown. ठीक है, okay, if you cannot see this and if still you see that there is implant prosthesis without any access hole, it might be cemented. ठीक है, रिकमेंड क्राउन क्या होता है? रिकमेंड क्राउन पहले होते थे, ये क्राउन है, मान लें पोस्ट इन कोर एक ही उसमें, और उसी के ऊपर आपका सेरामिक चढ़ा हुआ है, तो ये पोस्ट एक्सटेंशन इन द टीथ रूट से उसी के ऊपर ही आपका सिंगल पीस में आपका सेरामिक चढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं रिकमेंड क्राउन। एंडो क्राउन हम अब देते हैं, मान लो आपकी बहुत ज़्यादा म्यूलेटेड दांत है, हम 2 mm का रिम बनाते हैं, रूटनाटेड दांत है, ठीक है, और हम बेसिकली द सेंटर में हम वी टेक दी सपोर्ट ऑफ द चैम्बर एंड देन वी यूज नॉर्मली ईमैक्स क्राउन्स टू बॉन्ड इट, टू बॉन्ड ओवर दिस रिम, 2 mm रिम, इसको बोलते हैं एंडो क्राउन। Okay, okay, so we are all, so this is in between, I am telling you that we are all taking 1 hour power pack sessions every day almost, okay, and we all are also starting our INICT PYQs, okay, master class that will be starting from 1st of September, and we are also starting CBTs, so exam date is 10th Jan, registration
last date is 3rd Jan, and very nominal fees from DAMS. I really appreciate DAMS people that they're not charging anything for the amount of the work they are giving to the students. So it's a magical opportunity. Kindly grab this opportunity to do wonders. Okay, so today I am having this session. 27th is oral surgery, 28th preventive, and 29th again I'll be taking the dental material session. Okay, so going ahead with the identify the type of processes. So if you see this processes, it's a screw retained processes. Yes, you can see this screw retained. It's a metal framework और उस पर इंडिविजुअल आपके एक्सटेंशंस है मेटल की, जिनके ऊपर हम ये क्राउन इंडिविजुअल क्राउन लगा देते हैं. एडवांटेज क्या है? ओके, नाउ द एडवांटेज हियर इज दैट वी आर सीमेंटिंग इंडिविजुअल क्राउन्स. अगर आपकी सिंगल प्रोसेसेस होती तो अगर मान लो आपका एक भी अगर आपका क्राउन फ्रैक्चर होता तो सारी प्रोसेसेस निकालनी पड़ती, भेजनी पड़ती. अब यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क तो मेटल का है, मिल्ड फ्रेमवर्क है, इंडिविजुअल क्राउन से. अगर मान लो ये ख़राब होता है तो आप इसी को काटो, नॉर्मल इम्प्रेशन लो एफपीडी वाला और कर दो. नहीं, इसको बोलते हैं मालोस ब्रिज. ठीक है, इस कहते हैं मालोस ब्रिज. इम्प्लांट सपोर्टेड होता है. इट इज आंसर इज ए. आइडेंटिफाई द अटैचमेंट. बेटा ये इस बारी के नीट में या पिछली बारी के नीट में आई थी. सो इफ यू सी दैट यू कैन सी देयर इज एन अबटमेंट, देयर इज अ सिलिकॉन अटैचमेंट और ऊपर उसके हाउसिंग है. तो दिस लुक्स मोर ऑफ अ लोकेटर अटैचमेंट वेयर यू आर टेकिंग अ डुअल रिटेंशन. So can you see it is going inside, again it is taking from side retention. इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? लोकेट अटैचमेंट. वेरी गुड. लो प्रोफाइल अटैचमेंट्स जो आप ओवरडेंचर के लिए यूज कर सकते हो. ओके, सो हियर द आंसर इज योर सी, लोकेटर अटैचमेंट्स. लो प्रोफाइल जहाँ पे स्पेस इंट्रा स्पेस कम हो, लोकेट अटैचमेंट वर्क्स. अदर अटैचमेंट में बी योर स्टड. ओके, जस्ट अ मिनट. स्टड अटैचमेंट दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट टाइप. ये बॉल है, ये सॉकेट आपका, ठीक है, उसमें लग जाएगा आपका डेंचर में. देन देयर माइट बी बार एंड क्लिप. यू सी दैट देयर इज अ हेडर और द डोल्डर बार और उनके ऊपर क्लिप हैं. यू स्प्लिंट टू इम्प्लांट्स और टीथ है ना, इसको बोलते हैं हम बार सपोर्टेड ओवरडेंचर्स. देन देयर माइट बी मैग्नेट्स, मैग्नेट सपोर्टेड ओवरडेंचर. फॉर लोकेटर, स्टड, बार द पेशेंट शुड हैव एन एक्सेलेंट डेक्सटेरिटी. पेशेंट को निकालना डालना बहुत मुश्किल होता है. तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है इसकी डेक्सटेरिटी बहुत पुअर है, बहुत ओल्ड पेशेंट है, तो बेटर यू यूज़ मैग्नेटिक अटैचमेंट जहाँ पे यू जस्ट टेक इट क्लोज एंड इट इज हैविंग अ सेल्फ सेंटरिंग कैपेबिलिटी. ओके, गॉट इट, यू कैन डू इट. सो व्हाट दिस इज बेटा, आपको जब भी दिस इज अ इम्प्लांट एनालॉग, इम्प्लांट का हम शक्ल. सो दिस गोज इन द बेस ऑफ द कास्ट. देखो याद रखो, ये हमारा इम्प्लांट है, हड्डी में लगा हुआ है. ओके, हम इसको निकाल के कास्ट में, हमें यही तो चीज़ करनी है. यही चीज़ हमारी कास्ट के बेस में आ जाए तो हमारा मुंह की जो कंडीशन है, इम्प्लांट की पोजीशन 3D पोजीशन है, उसका हूबहू. अब इम्प्लांट तो निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने इस पर इम्प्रेशन कोपिंग लगाई. मान लो हमने क्लोज ट्रे इम्प्रेशन लिया, ठीक है. क्लोज ट्रे इम्प्रेशन लेने के बाद नाउ दिस इज योर पिकअप, दिस इज योर transfer type impression coping. Closed tray is your transfer type where you have to remove this, attach to the analog and then place it back in the impression. तो ट्रांसफर टाइप तो बेटर कौन सा है, मोर एक्यूरेट कौन सा है? द मोर एक्यूरेट इज योर पिकअप टाइप. तो ये एनालॉग होता है. दिस विल गो टू द बेस ऑफ द कास्ट where the technician can add, where the technician can add the abutment to it and can mill and fabricate the processes, right? One more question. Okay, identify the image shown in the, okay, this is better, this is important.
दिस इज अ मल्टी MUA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी यूनिट अबटमेंट। तो बेसिकली आप आजकल देखते हो, आप बहुत टिल्टेड इम्प्लांट कॉन्सेप्ट आ गए, जाइगोमेटिक, टेरिगोइड्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगुलेशन। हमने जो सीखा था, वी लर्नड अबाउट स्ट्रेट इम्प्लांटोलॉजी, बट नाउअडेज इट इज़ ऑल टिल्टेड इम्प्लांटोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे उनकी एंगुलेशन को करेक्शन के लिए हमें ये अबटमेंट लगाते हैं, इससे बोलते हैं हम टू फॉर एंगुलेशन करेक्शन वी यूज़ मल्टी यूनिट अबटमेंट्स एंड टू गिव अ स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस। Okay, so multi unit abutments, it can come in different angle. There might be straight multi units, 0 degrees, might be 15 to 17 degree, 30 35 degree, 40 even 60 degree तक जाते हैं। तो ये मल्टी यूनिट अबटमेंट्स हैं फॉर एंगुलेशन करेक्शन ऑफ द इम्प्लांट्स। ओके, last procedure, it's a very important for full mouth cases, especially for multiple implant. You can see this is a pattern resin, it's cut, it is joined in the patient's mouth, and then impression is taken. And if it doesn't, if the impression is not right, if you're jigged, this is a jig trial. For any implant prosthesis you have to do a jig trial procedure. अगर ठीक नहीं आता उसको कट करोगे, then again you join in the patient's mouth, again pick up. So jig trial is the most important step when you are, you know, doing an implant prosthetic procedure. It's a jig trial. You will see pattern resin, it's a very very important procedure. Okay, so jig trial procedure. Last, this is it a pilot drill? No. Cortical drill? Yes. So आप देखो मोटी ड्रिल है, तो बेसिकली जब हमारी बहुत ही हार्ड बोन होती है and you do not want excessive torque for the reason of compression necrosis, तो आप क्या करते हो, सिर्फ ऊपर का पोर्शन आप वाइड कर देते हो ताकि हमारा इम्प्लांट आराम से अपनी ऑस्टोट में चला जाए। तो इट इज़ गिवन इन D1 D2 बोन। तो कॉर्टिकल ड्रिल या बोन टैप्स, कभी क्वेश्चन आए बोन टैप्स या बोन टैपिंग, तो बोन टैपिंग आप बेसिकली उसके अंदर चूड़ियाँ बना देते हो बोन के अंदर ताकि आपका इम्प्लांट आसानी चला जाए विदाउट हैविंग एक्सेसिव टॉर्क। तो बोन टैप क्वेश्चन आता है, इज इट यूज इन D1 बोन और D3 बोन, D4? तो हमेशा हार्ड D1 D2 बोन में बोन टैप यूज़ होता है ताकि आपका इम्प्लांट सेल्फ टैपिंग चला जाए। रिमेंबर, बोन टैपिंग या बोन टैप्स, इट इज़ यूज इन हार्ड बोन, D1 बोन, एंटीरियर मैंडिबल। Okay, specifically. Okay, which type of a clasp is indicated on the terminal abutment? Now we know that you see there is a edentulous space, class 3 case. This is mesiolingually tipped. तो जब भी हमारा abutment mesiolingually tip हो जाता है तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं? हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हमारा ring clasp. So it goes from buccal side, it goes from end-gomen to lingual side. तो यहाँ पे हम रिंग क्लास्प यूज़ करते हैं विद एन एक्सटेंडेड रेस्ट। ओके, सो द आंसर हियर इज रिंग क्लास्प। याद रखना, जब भी हम रिंग क्लास्प देते हैं तो क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम यहाँ पे एक सपोर्टिंग स्ट्रट लगा देते हैं, बक्कली सपोर्टिंग स्ट्रट। ओके, so I hope I have taken maximum photo or pic based questions today. I hope you have understood the concepts. Thank you for joining. Signing off, Dr. Chetan Pathak. I'll meet you on 29th for dental material session. Thank you so much. God bless you. Start reading and also think about joining the we are starting PYQs of the initiate questions on September 1. Again, I'm showing the slide so that you don't miss it. Okay, computer base we will be starting from 10 Jan, 3rd Jan is the last date, and PYQs from 1st September at 8. Thank you so much. God bless you. Stay blessed.